Yes, beta. Let's continue with the chapter algebra. We started yesterday. And the network connection got lost. That's why the class was disconnected. Okay? So what we did yesterday, we did the definition. Then now we have to discuss about the type of polynomials. ठीक है? Type of polynomials में बेटा सबसे पहले आपके पास है monomial. Then you have binomial. Then you have trinomial. इसके बाद होता है it is not written in the book. quadrinomial और उसको हम बोलते हैं all are polynomials. ठीक है? अब monomial write down. Monomial, an algebraic expression with one term. An algebraic expression with one term. जल्दी जल्दी लिखो मैम। ऊपर आपने हेडिंग क्या दी है? हेडिंग तो कुछ नहीं दी बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो तो अलजेब्रा लिखा हुआ है मैंने. व्हाट आर दीज? दीज आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. हेडिंग इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. So first one is monomial, that is write down the algebraic expression which has one term. बस इस called polynomial लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसके सामने है. What is a monomial? An algebraic expression with one term. Next, binomial, an algebraic expression with two terms. जल्दी जल्दी लिखो. And please don't अंडरलाइन कर लो. An algebraic expression with two terms is called binomial. साथ में एग्जांपल भी देखो. मोनोमियल मतलब एक टर्म, मतलब 4x 7, 9y, ये अलग अलग है. These are not related with any positive or negative sign. I told you yesterday that the terms are separated by positive and negative sign. Here we don't. ये अलग है, ये 4x अलग, 7 अलग, 9y अलग. ये सारे क्या है? मोनोमियल्स, सिंगल टर्म. बाइनोमियल एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स. जैसे एग्जांपल भी लिखनी है साथ में, जैसे x + 7, 4x + 8, x + y, z - 3, ऐसे कुछ भी. ठीक है? दे आर बाइनोमियल्स. They are binomials. Written. Next, trinomial. It is clear from the word only. Tri means three. So write down an algebraic expression with the three terms is called trinomial. जैसे x + y + 7, तीन टर्म्स आ गई. 4x - y + 9, तीन टर्म्स आ गई. ऐसे where you are having three terms, that is known as a trinomial. Then तीन के बाद quadrinomial means quad का मतलब four, quadrilateral means four sided. What is the problem, student? Karanveer, don't unmute yourself, otherwise it is very easy for me. I'll switch that option off. Quadrinomial means beta, write down an algebraic expression with four terms. X + y + z + 3, 9x - 4y + 3z - 9. इसमें चार टर्म्स हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल. जनरल उसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. तो अगर चार से ज्यादा टर्म्स है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, उसको हम बोलते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल. अदरवाइज 4x is 4x a polynomial? Yes, all these are polynomials. बट पर्टिकुलरली अगर एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोल देते हैं.
2 टर्म्स है तो बायनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 4 है, 4 का वैसे बुक में लिखा नहीं बट आई हैव टोल्ड यू 4 को आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो ऑन पेज नंबर 138। Then give the heading like terms. This also you have done, but still we will discuss it once again. Like terms. Heading दे दी? Shall I rub it? So write down like terms. The terms of the algebraic expression, the terms of the algebraic expression which has same variable, the terms of an algebraic expression which has same variable are called like terms. The terms of an algebraic expression which has same variable are called like terms. बस फिर अनलाइक के लिखने की जरूरत नहीं है, जिनकी सेम है वो लाइक है, जो वेरिएबल सेम नहीं है वो क्या है अनलाइक। ठीक है, जैसे लाइक टर्म्स में जैसे आपके पास ये है बेटे 7x 14x, वेरिएबल सेम है ना, तो ये कैसे है लाइक। Like terms can be added or subtracted, but unlike terms cannot be added and subtracted. जैसे मान लो सपोज यहाँ पर हो प्लस, is it a monomial or binomial? Raise your hand and I'll take the name. वो बच्चा आंसर देगा। Is it a monomial or a binomial? Yes, Abni. मैम बायनॉमियल। Bani. मैम बायनॉमियल। देखो, I have just now told you that like terms can be added. आपने देखा ये 2 टर्म्स हैं, बट बेटा ये दोनों टर्म्स कैसे हैं like terms हैं। So like terms can be added. 14x plus 7x will become 21x. 14 plus 7 21x. Thereby it is a monomial. It is not a binomial. अगर वो 7x plus 4y, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। Why? Because the variables are different. If the variables are different, then we cannot combine the terms. यहीं पर आंसर छोड़ना पड़ेगा। अनवे कुछ बोलना है, बोलो। मैम लाइक टर्म की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दो। एक मिनट अनवे, प्रबल म्यूट करो। हाँ जी अनवे आप बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम अगर कोई टर्म है जैसे 7x into 4y, उसका आंसर क्या होगा? स्पीक अगेन। वेरिएबल डिफरेंट है। अनवे एक मिनट बेटा, अब बोलो। कोई टर्म है 7x into 4y जैसे, इनका आंसर क्या होगा? दोनों के वेरिएबल अलग है। मल्टीप्लाई। यस मैम। हाँ जी, अभी हम एडिशन कर रहे थे ना, इसीलिए वो डिस्कस नहीं किया। अगर 2 अनलाइक टर्म्स हैं और प्लस माइनस हो रहा है 7x plus 4y या 7x minus 4y, इसको आप आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ये भी आंसर ये अलग से आंसर। अगर आपके पास प्रोडक्ट हो 7x multiply by 4y, ठीक है, तो ये वैसे मोनोमियल ही है, क्योंकि आपको बताया है कि जो टर्म्स हैं वो किस साइन से अलग होती हैं, प्लस या माइनस। इसको आप कैसे लिखोगे, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 4 are 28, x y is the answer. ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, यस मैम। okay, so we have done like terms. I have told you what are like terms. आगे चलें, एक्सरसाइज 9 पॉइंट, अच्छा इधर देखो, पेज नंबर 139. ट्राई दीज, राइट 2 टर्म्स। मैम लाइक टर्म की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दो। कौन है? प्रबल।
The Ma'am, terms probable. which have same variable. The terms which have the same variable are called like terms. ठीक है? अब पेज नंबर 139 पे जो क्वेश्चन है कि जैसे आपके पास गिवन है 7xy, कहते हैं इसके जैसे राइट डाउन विच टू राइट टू टर्म्स विच आर अलाइक, इसके जैसे अलाइक और दो टर्म्स लिख दो। यहाँ वेरिएबल क्या है? xy, तो लाइक टर्म्स में लिखोगे 4xy 9xy, these are alike, variable should be the same। इसी तरह से सेकंड पार्ट में है 4mn स्क्वायर, तो इसके जैसे अलाइक क्या होंगी? 7mn स्क्वायर 9mn स्क्वायर। जो वेरिएबल है उसको चेंज नहीं करना, अगर n के साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, m सिंगल है तो सिंगल आएगा। ठीक है? ऐसे ही 2l 3l 4l, ये कॉपी में नहीं करना, बस बुक में लिख लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टर्म्स where coefficient for each of the following. So I will take the first part. Five xyz square minus 3zy. नाउ सी बेटा, हमसे क्या पूछा है कि टर्म्स बताओ और कोफिशिएंट बताओ। कल आपको बताया था अगर सिर्फ कोफिशिएंट लिखा है तो इसका मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। विच आर द टर्म्स? 5xyz स्क्वायर कॉमा, और दूसरी क्या है? -3zy। नाउ नेगेटिव साइन इज इन फ्रंट ऑफ 3zy, तो वो उसके साथ जाएगा। एंड कोफिशिएंट क्या रहेंगे? 5 एंड -3। क्विकली नोट डाउन। सेकेंड पार्ट देखेंगे बेटा। Which are the term? 1, x, x square, and which are the coefficient? Who will tell me coefficient? Yes, Avni. मैम टर्म x का कोफिशिएंट 1 है और टर्म x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 है। सब में 1 है ना? अगर x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, तो कोफिशिएंट में सिर्फ 1 लिख दो, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1, तो सिर्फ 1 टाइम ही, या 1,1 भी लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं। दिस वन इज कांस्टेंट, ये वाला। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ करवा देती हूँ, चलो एक बार। x/2 plus y/2 minus xy देखेंगे। which are the terms? x/2 y/2 minus xy, and what is the coefficient? अगर x/2 है तो coefficient क्या है? Yes, who will tell me? Ma'am, 1. No. Ma'am, x का coefficient 1. No. Vani. मैम कोफिशिएंट विल बी 1/2। Yes. जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x/2 का मतलब क्या है? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, डोंट गिव फोकस ऑन मोर ऑन राइटिंग। x/2 मींस 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, तभी ये x into 1 x हुआ और ये 2। So x/2 means the coefficient is 1/2, and here minus xy means we have -1.
एनी डाउट टू एनीवन? प्रबल बोलना है कुछ? बस मैम, मैम एक मेरे को डाउट था मैम, जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया हो कि अगर इन्होंने दिया हो कि जैसे एक्स 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 का हमने एक्स कोफिशिएंट देना है, तो मैम पर उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि उसमें पर मैम एक्स तो है नहीं, पर एक्स स्क्वायर है, तो मैम हम एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे वन? नहीं, अगर आपके पास ऐसे है, सपोज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई 7y, what is the coefficient of y? 7. what is the coefficient of x? x दिख रहा है, सिंपल x नहीं दिख रहा ना, तो coefficient of x will be 0 because x and x square are different. x, x square, x cube, they all are different. अगर x square है तो और x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो x था उसका कोफिशिएंट क्या था? 0. मतलब उसके साथ 0 क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई. कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना, x के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा था. 0 गेटिंग मल्टीप्लाई विद एनी नंबर बिकम 0, तो ये अल्टीमेटली 0 हो गया जिसको लिखा ही नहीं. इसीलिए अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? y स्क्वायर है? नहीं है. इसका मतलब y स्क्वायर के साथ 0 है. 0 उसके साथ होके खत्म. जब वो है ही नहीं वो वाला वेरिएबल तो उसका कोफिशिएंट 0. क्लियर? आगे चलो. I hope the rest of the parts you can do yourself. Next, question number 2. Classify the following polynomials as monomial, binomial and trinomial. Which polynomials do not fit in any of these categories? So this you can do yourself in the book only. जैसे पहले वाला क्या है? Binomial. 1000 अकेला 1000 क्या है? मोनोमियल. उसके बाद 4 टर्म्स हैं, ठीक है. उन्होंने पूछा बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल कौन सा है, तो जो मोनोमियल है, जो बायनोमियल है, जो ट्राइनोमियल है उसके ऊपर लिख दो MBT. बाकी जो जैसे 4 टर्म्स वाला है वो पॉलिनोमियल है, बस उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना, ठीक है. फाइन. नेक्स्ट, add the following. now main question. आगे आपके पास क्या है इस चैप्टर में? काफी कुछ है. so this is just the beginning, बेसिक है ये. अब एडिशन आएगी. now you have to understand carefully, ठीक है. Third question, add. A part, first part. In the case of, yes Jayavant, बोलो. मैम I have a doubt मैम. क्वेश्चन 2 में x प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो है मैम वो ऐड नहीं हो जाएंगे? कैसे ऐड होंगे बेटा? वो लाइक है. x की पावर 1 है, फिर x स्क्वायर है, फिर x क्यूब है, फिर x 4 है. मैंने अभी बोला है x, x स्क्वायर, x क्यूब, x 4 दे ऑल आर डिफरेंट. x को आप x वाली टर्म में ऐड कर सकते हो. x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. x क्यूब प्लस 4x क्यूब इज 5x क्यूब. But if you have x plus x square, nothing can be done. They are not like same variable. Same variable मतलब ये नहीं कि x, y, z सेम हो, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है. Yes. Done. So now see the addition. In case of addition, जहां जहां आपके पास कॉमा है उसको रिमूव करके आपने क्या लगा देना है? प्लस का साइन. देखो AB माइनस BC प्लस हटाया, सॉरी कॉमा हटाया, कॉमा हटा के आपके पास आएगा प्लस BC माइनस CA प्लस
CA minus AB. This is clear? Now you will see. ये AB है, कहीं और AB है हमारे पास? Yes. Here we are having AB. This AB is negative and this AB is positive. So it will get cancelled. जैसे -7 + 7. एक नंबर अगर नेगेटिव होता है और एक नंबर पॉजिटिव होता है, हम कट कर देते हैं ना उसको. इसी तरह से if we have -AB and +AB, it will get cancelled. Fine. Similarly, -BC plus BC will get cancelled. -CA plus CA will get cancelled. What will be the answer? हाँ जी, who will tell? मैम 0. 0 or 1? मैम 0. 1. 0. मैम 0. Yes. The answer मैम will. because as you have told. इधर देखो, the answer will be 0. अगर ऐसे होता हमारे पास AB over AB, ऊपर नीचे वाला हम कट करते हैं, तो आंसर क्या आता? 1. If any number is getting divide होकर हो रहा है तो 1, लेकिन अगर माइनस करते हैं तो आंसर इज 0. Second part you will do yourself. सारे जो होमवर्क पे पार्ट्स दूंगी बेटा वो खुद ट्राई करने हैं. ट्राई करने के बाद यू हैव टू मैच योर आंसर्स फ्रॉम द बैक. नहीं मैच होते तो क्या डाउट है फिर वो आपने पूछना है. और हमेशा अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशन है उसको बहुत केयरफुली नोट करना है. कहाँ माइनस है, कहाँ कॉमा है, वेरी केयरफुली. एक माइनस भी नहीं लगाया आपने तो इसका मतलब फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी. देखो मैं क्वेश्चन नहीं दोबारा लिख रही, ये क्वेश्चन है. कॉमा हटाएंगे क्या लग जाएगा? प्लस. हु इज दिस? प्रबल क्या बात है, आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो खुद को बार बार? So I have removed the comma and put the plus. Now we will see which are the like terms. 2p square q square. क्या हमारे पास p square q square वेरिएबल वाली कोई और टर्म है? हाँ जी है. अब we can skip this step. एक स्टेप है कि आप इकट्ठा लिख दो 2p square q square minus 3p square q square, फिर सॉल्व करो. But why to do that? You know these terms are same, variable is same. यहाँ पर आपके पास क्या है? +2. यहाँ पर क्या है? -3. So 2 minus 3 is what? -1. 2 minus 3 is what? -1. तो आपका पास आंसर आएगा -1 p square q square. चाहे -1 लिखो चाहे सिंपल लिख दो -p square q square. ठीक है, माइनस साइन आएगा. और जो जो टर्म्स जैसे हो जाती है ना उनको हम पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं कि ये टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया. क्योंकि कई बार क्या होता है दो या दो से ज्यादा लाइक टर्म्स होती हैं. सो व्हेनेवर वी आर कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स ऑलवेज अंडरलाइन सो दैट नो टर्म इज लेफ्ट बिहाइंड. देन -3pq प्लस 7pq. pq है 7 - 3 4 बट प्लस का आएगा सो प्लस 4pq. Then +4 + 5 is +9. Answer. मैम हम इसमें लाइक टर्म्स वाला मैम वो लिख सकते हैं ना स्टेप? मत लिखो, लिख दो, आपकी मर्जी है. बड़े हो गए हो अब क्या करना है, एक स्टेप लिख कर लिख दो. इट्स ओके. सो फोर्थ पार्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ. फोर्थ पार्ट में देखो एक बार जनरल बुक में देख लो तो खुद कर लेना. जब आप कॉमा हटा के प्लस लगाओगे तो l² + l² 2l² बन जाएगा. m² + m² 2m² एंड n² + n² 2n². आपके पास आएगा ये.
इधर देखो 2l² प्लस 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये 3 टर्म्स ऑलरेडी हैं। आंसर कैसे दोगे? सब में 2 है, 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लिया तो बाकी सब में से 2 हटा देंगे अगले स्टेप में, ये आंसर। ठीक है, हाँ जी क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, A part. Now we have subtract 4a minus 7ab minus plus 3b plus 12 now you know in subtraction subtract 7 from 8, 9 from 10, हमेशा सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वाला, फ्रॉम के बाद जो भी होता है उसको हम पहले लिखते हैं, बट ऑब्वियस है ना। अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो फ्रॉम के बाद जो भी एक्सप्रेशन है बेटा उसको हम कहाँ लिखेंगे? पहले। देखो इधर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 तो ब्रैकेट में डाल दो। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ये लिख दिया। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो माइनस, माइनस के बाद आप जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हो ना बेटे, चाहे उसकी सिंगल टर्म है चाहे बायनोमियल है, हमेशा कोशिश यही करना करो, कोशिश नहीं करना ही है कि माइनस के बाद जो भी टर्म है उसको हमेशा ब्रैकेट में डालो। पहले वाली टर्म आएगी 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ व्हाट टू डू? वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट। 12a ये तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसके आगे तो कोई साइन नहीं आएगा। Now we can see here outside the bracket we have minus. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इट मीन्स व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स विल गेट चेंज। अगर सपोज आपने ब्रैकेट नहीं डाला और ऐसे ही लिख दिया, फिर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 0 क्योंकि आपका सारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सो ऑलवेज वी हैव टू पुट द ब्रैकेट because if outside the bracket we have negative sign and then on opening the bracket the sign of each term gets changed. It will be minus 4a minus minus plus 7ab minus plus minus 3b minus plus minus 12. Clear? Minus 4a minus minus plus 7ab minus plus minus 3b minus plus minus 12। अब देखेंगे लाइक टर्म्स। 12a माइनस 4a ऐसे। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टेप मिस कर दिया है, इसमें भी आप मिस कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 12a माइनस 4a लिख लिया, माइनस 9ab प्लस 7ab। जैसे अगर आप बाय चांस ऑरली नहीं कर पाते हो तो ऐसे कंबाइन करके लिख लो। प्लस 5b, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, प्लस 5b माइनस 3b। जो भी टर्म के आगे साइन है वो उसके साथ ही चलेगा। माइनस 9ab प्लस 7ab है तो वैसे ही चलेगा, अपनी मर्जी से 9ab माइनस 7ab नहीं कर देना। जो साइन जिस टर्म के साथ है वो उसी के साथ रहेगा। देन माइनस 3 माइनस 12। देखो सारी टर्म्स अंडरलाइन हो गई, इसका मतलब हमने सारी टर्म्स लिख ली। अब देखो 12a माइनस 4a 8a,
minus 9ab plus 7ab minus 2ab plus 5b minus 3b plus 2b minus 3 and minus 12 is minus 15. Clear? Any doubt to anyone? So beta, second part you will try yourself. Third part we will do on Monday. हाँ जी पुण्या, मैम यहाँ आपने 2 भी लिखा है, वहाँ पर 8 भी नहीं आना। पुण्या इधर देखो, ये 5b के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। ये 3b, b को भूल जाओ, ये प्लस 5 है, ये माइनस 3 है। 5 माइनस 3 8 होता है कि 2 होता है? 2 होता है ना, ये प्लस थोड़ी हुए हैं, ये माइनस हुए हैं, इसलिए 5b माइनस 3b इज प्लस 2b। क्यों प्लस? क्योंकि 5 बड़ा और उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, केयरफुली करने हैं सम्स। Any doubt to anyone else? I hope Punya it is clear. Lower your hand. Any doubt? सेकेंड पार्ट खुद ट्राई करना, ठीक है? यस रोहित, चलो नो डाउट। सी यू ऑन मंडे बेटा, टेक केयर।